चल स्टार्ट करते हैं। कहाँ तक था लास्ट ये बता दो। मीटिंग करा दी थी, मीटिंग और हेडिंग भी लिखवाई थी शायद, ऑनलाइन कौन था कल। चलो हेडिंग लिखो बेटा, ऑक्सीडेशन रिएक्शन, ऑक्सीडेशन रिएक्शन, ऑक्सीडेशन रिएक्शन, ऑक्सीडेशन एंड रिएक्शन। देखो बेटा इसमें थोड़ी सी लैंग्वेज देखो फिर बताता हूँ। एल्डिहाइड एंड कीटोन, एल्डिहाइड एंड कीटोन both will be show, aldehyde and ketone both will be show oxidizing nature, both will be show oxidizing nature, but aldehyde will be easily oxidized, but aldehyde will be easily oxidized, but aldehyde will be easily oxidized in compare of ketone, in compare of ketone. The reason is that in aldehyde carbonyl carbon is directly attached with hydrogen, which is easily eliminated from the reaction, which is easily directly attached with the hydrogen atom, which is easily eliminated from the reaction and show oxidizing nature, and show oxidizing nature, and show oxidizing nature, while in ketone, while in ketone carbonyl carbon, while in ketone carbonyl carbon will be attached with alkyl group, which does not easily eliminated in the reaction, easily eliminated in the reaction. So for the reduction of ketone, specific reagent will be used, specific reagent will be used for the oxidation of ketone, while aldehyde will be easily oxidized by, acidic KMnO4, potassium dichromate K2Cr2O7, and weak failing solution. failing solution क्या होता है failing solution? फॉर्मूला बताओ। failing solution and toluene reagent, Ag2O and toluene reagent। हेडिंग देखो सबसे पहले, oxidation by the strong oxidizing reagent, पहली हेडिंग लिखो, oxidation by the strong oxidizing reagent, देखो reagent, ये देखो RCH
डबल बॉन्ड हो, एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन कर दिया मैंने किस से, KMnO4 स्ट्रॉन्ग है बेटा, दूसरा कौन सा लिया है, K2Cr2O7। ऑक्सीडेशन का मतलब है एक ऑक्सीजन का अटैचमेंट, एक ऑक्सीजन जुड़ेगा तो इससे क्या बन जाएगा बेटा, RC डबल बॉन्ड OH। देखो बेटा कहाँ था तो इतने दिनों से बहुत। देखो नेक्स्ट हेडिंग लिखो, ऑक्सीडेशन बाय द फेलिंग सॉल्यूशन, ऑक्सीडेशन बाय द फेलिंग सॉल्यूशन, फेलिंग सॉल्यूशन by this reaction, by this reaction acid and by this reaction acid and cuprous oxide will be formed, acid and cuprous oxide will be formed, which will be gives red color, which will be gives pink nahi, also text में आता है, which will be gives red color, text होता है ना उसमें आता है, इसमें which will be gives red color, ये लो नीचे वाली रिएक्शन। खुश हो रहा है, कुछ तो ऐसे होना चाहिए, लाना चाहिए। नेक्स्ट देखो तीसरी हेडिंग, ऑक्सीडेशन बाय द टॉलेंस रिएजेंट, ऑक्सीडेशन बाय द टॉलेंस रिएजेंट, by this reaction silver mirror will be formed, by this reaction silver mirror will be formed, silver mirror will be formed and aldehyde form silver mirror only silver mirror will be formed and aldehyde will be oxidized into, very good, and aldehyde will be oxidized into acid. क्या है बेटा टॉलेंस रिएजेंट, Ag2O, कुछ नहीं याद रखना, ये ऑक्सीजन यहाँ के अटैच हो जाएगी और क्या बन जाएगा RCOOH और इसका फॉर्मेशन हो जाएगा बेटा 2Ag। ये Ag क्या है बेटा यहाँ पर सिल्वर मिरर, सिल्वर मिरर इसलिए कहते हैं कि शाइनी होता है ना बहुत ज्यादा, टेस्ट ट्यूब की वॉल्स पे हो जाता है, इकट्ठा हो जाता है, वहां मिरर की तरह चमकता है, इसलिए इसको सिल्वर मिरर के नाम से जानते हैं अपन, ठीक है। ठीक है, नेक्स्ट देखो बेटा इंपॉर्टेंट लगाओ, बेयर विनेगर ऑक्सीडेशन, बेयर विनेगर ऑक्सीडेशन, बेयर विनेगर फर्स्ट ईयर में पढ़ा था बेयर्स स्ट्रेन थ्योरी, इसमें बेयर बड़ी होती है इसलिए बेयर विनेगर ऑक्सीडेशन, by this reaction carbonyl compound, by this reaction carbonyl compound will be changed into,
by this reaction carbonyl compound will be changed into acid. Carbonyl compound will be changed into acid, and we have to use per acid, and we have to use per acid. देखना बेटा, देखो बोर्ड पे देखना रिएक्शन क्या है। ये क्या लिख दिया मैंने, एल्डिहाइड लिख दिया। मतलब देखो एल्डिहाइड हो गया, एक तरफ हाइड्रोजन होता है तो एल्डिहाइड में दोनों एल्काइल ग्रुप होते हैं तो कीटोन, और इसका ऑक्सीडेशन कराता हूं पर एसिड से। देखो बेंजोइक एसिड का फार्मूला क्या है, बेंजोइक का बेंजीन रिंग और बेंजीन, वेरी गुड, बेंजीन रिंग और सीधा मतलब इसका मतलब मैं ये लिख दूं C6H5 क्यों हो सकता है बेंजोइक एसिड का। अब सुन, नॉर्मल कंडीशन जैसे वाटर का फार्मूला क्या है H2O, अच्छा एक ऑक्सीजन एक्स्ट्रा हो जाती है तो क्या नाम हो जाता है, पर ऑक्सीजन। तो नॉर्मल कंडीशन है, नॉर्मल कंडीशन में एक और ऑक्सीजन आ जाए तो वो पर एसिड हो जाता है, उसके पर लग जाते हैं, पर लग जाते हैं ना कभी-कभी साफरा, वैसे इसके भी पर लग जाते हैं, लगता है पर। तो देखो C6H5 C डबल बॉन्ड OH, ये क्या हो गया, पर एसिड। नॉर्मल कंडीशन से एक ऑक्सीजन एटम अगर एक्स्ट्रा हो जाए तो उसको कहते हैं पर एसिड। अब आपको कुछ नहीं करना है, आपको क्या याद रखना है, इन दोनों में से एक ऑक्सीजन उठानी, इन दोनों में से एक ऑक्सीजन उठाई और इसके बीच में इंट्रोड्यूस करा देंगे इस बॉन्ड पे, क्या बनेगा RC डबल बॉन्ड OH, बन गया एसिड, ठीक है। प्लस क्या क्या रहेगा बेटा, C6H5CO, एक ऑक्सीजन तो चलेगी, ठीक है, C6H5C डबल बॉन्ड OH। अब लिखना रिएक्शन हुई है तो रिएक्शन की, ये रिएक्शन कराई जाती है एसिडिक कंडीशन में। कौन सी कंडीशन में, एसिडिक कंडीशन में। एसिडिक कंडीशन के लिए मैंने H पॉजिटिव लिख दिया है, या फिर किसका यूज कर लूं मैं, H2SO4। अब देखना सुनो, कार्बोनाइल कंपाउंड कौन सी रिएक्शन देते हैं, न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन। सबसे पहले मैंने ले लिया RC डबल बॉन्ड O और इससे क्या जुड़ा हुआ है H प्लस H पॉजिटिव, जो मैंने रिएक्शन किया है। कार्बन और ऑक्सीजन में किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, ऑक्सीजन की ज्यादा है, तो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन किस पर आएंगे, ऑक्सीजन पे। ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज आएगा, कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज, इस नेगेटिव से कौन जुड़ जाएगा, H पॉजिटिव, RCHO सिंगल बॉन्ड H, क्लियर है। और कार्बन पर कैसा चार्ज आ गया बेटा, पॉजिटिव चार्ज आ गया, क्लियर है यहां तक। अच्छा अगली कंडीशन में मेरे पास एसिड है, मेरे पास क्या है, एसिड है। इस एसिड को लिखना है किस फॉर्मेट में लिखना है, RCHOH और इस पर कैसा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज, प्लस यहां से मैं स्टार्ट कर रहा हूं बेटा, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन से हाइड्रोजन, ये ऑक्सीजन दूसरी, फिर C डबल बॉन्ड O और C6H5, ये रहे अंदर। अच्छा इस ऑक्सीजन के पास क्या प्रेजेंट है बेटा, लोन पेयर है। ऑक्सीजन अपने लोन पेयर किसको देगा, C पॉजिटिव को, और जब बॉन्ड बनाने में पार्टिसिपेट करने वाली तो और इलेक्ट्रॉन किसी एक ही एटम के होता है और कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनता है, कोऑर्डिनेशन बॉन्ड को अपन एरो के साइन से रिप्रेजेंट करते हैं। देखिए जरा बेटा R बिल्कुल विदाउट डेफिनेशन, अब देखो इसमें तो मैं क्या कह सकता हूँ, आजा आ रहा हो तो गया आ रहा है, दोबारा तो बात लगी पता नहीं आ रही है तो होगी। देखो बेटा इधर देखो OH ये बन गया, कार्बन पर कैसा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है, OH इससे क्या जुड़ गया, ऑक्सीजन और C डबल बॉन्ड O और C6H5। यहां तक की स्टेप समझ में आ गई पूरी पूरी। अब मैं अगली स्टेप में क्या करूंगा, कोऑर्डिनेशन वैल्यू को कोवेलेंट बॉन्ड में चेंज करूंगा। ध्यान रखना, देखो जब भी कोऑर्डिनेशन बॉन्ड को कोवेलेंट बॉन्ड में चेंज करते हैं, यहां पर एरो का हेड है सावरा, मैं में हूं यहां में हूं, बढ़िया सा लग रहा है मैं, लिखोगे बढ़िया लग रहा है, इसका हेड है, जहां हेड होता है वहां पर कैसा साइन आता है, नेगेटिव, पॉजिटिव को न्यूट्रल में रहेगा, और जहां उसकी टेल होती है वहां पर पॉजिटिव चार्ज होता है। इसी में कर दो क्या, RCHOH का ऑक्सीजन, ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है ये पॉजिटिव चार्ज, सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन C, बट बात मत करो, देखो
C6H5। अगली स्टेप मुझे तो दिखाई दे रही है, तुम्हें भी दिखनी चाहिए। ऑक्सीजन पर पॉजिटिव चार्ज, इसकी टेंडेंसी की अपोजिट है। ऑक्सीजन तो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, और इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पर कैसा चार्ज होना चाहिए? नेगेटिव चार्ज होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर कैसा चार्ज है? पॉजिटिव चार्ज है। इस कंडीशन में ये वाला बॉन्ड ब्रेक कर दूंगा, और इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन जाएंगे यहाँ पर, नेगेटिव पॉजिटिव को न्यूट्रलाइज कर देगा। यहाँ से क्या बाहर निकलेगा? H पॉजिटिव। क्या बनेगा बेटा? RCHOH, ये ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन, इस C डबल बॉन्ड को C6H5। क्लियर है यहाँ तक की बात? पूरा का पूरा न्यूट्रल एटम बन गया। अगली कंडीशन सुनो बेटा, देखो अब क्या होता है इस कहानी में, पूरे के पूरे में देखो, ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन के बीच का बेटा एटम बॉन्ड टूटता है। अब अपने मन में एक बात क्राइटेरिया सेट करना, तो मैं तुम्हें सिखाता हूं। दो कंडीशन है, या तो बॉन्ड टूट के इस ऑक्सीजन पे चले जाए, या फिर इस ऑक्सीजन पर चले जाए। लेकिन बेटा ये बॉन्ड टूट के इस ऑक्सीजन पे जाता है, रीजन दूंगा क्यों। इस ऑक्सीजन पर जाता है, तो इस ऑक्सीजन पर आता है नेगेटिव चार्ज, और इस ऑक्सीजन पर आता है पॉजिटिव चार्ज। इस ऑक्सीजन पर ही नेगेटिव क्यों आया? अगर मन में एक क्वेश्चन ले लो तो मैं इसका आंसर देता हूँ, क्योंकि नेगेटिव सिंगल डबल कौन सी कंडीशन है? कॉन्जुगेशन, और कॉन्जुगेशन की वजह से स्टेबिलिटी इंक्रीज हो जाती है। अगर यहाँ पे नेगेटिव लाता तो यहाँ पॉजिटिव आता, तो कॉन्जुगेशन तो है, लेकिन ऑक्सीजन एटम पॉजिटिव के साथ रेजोनेंस शो नहीं करेगा, इसके साथ शो करेगा नेगेटिव। समझ में आ गई? जैसे मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूं, ये एसिड है, ठीक है, और इस एसिड में से H पॉजिटिव निकाल दूं तो क्या बनेगा बेटा? C6H5C। एसिडेट आयन बन गया एक तरीके से, या कार्बोक्सिलेट आयन बन गया। इन दोनों में ज्यादा स्टेबल कौन है? नीचे वाला स्टेबल है, क्योंकि नीचे वाले में रेजोनेंस पाया जाता है। ठीक है, समझ में आ गई यहाँ तक? ध्यान रखना बेटा, रेजोनेंस की वजह से स्टेबिलिटी हमेशा क्या हो जाती है? इंक्रीज हो जाती है। ठीक है, तो इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, क्या क्या बनेगा बेटा? देखना ध्यान से, RCHOH, इस ऑक्सीजन पर कैसा चार्ज आ गया? पॉजिटिव चार्ज, प्लस यहाँ पर क्या कंडीशन है बेटा? C6H5C डबल बॉन्ड O, और इस ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज। देखो रेजोनेंस हो रहा है इसके और इसके बीच में। अगली कंडीशन में क्या होता है बेटा? ध्यान से देखना, ऑक्सीजन पर पॉजिटिव चार्ज जब आ गया, मतलब इसकी नेचर के कैसा वर्क हो रहा है? पॉजिटिव वर्क हो रहा है। इस कंडीशन में ये वाला बॉन्ड टूटता है बेटा। इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन ऐसे क्यों? आगे से देखो, यहाँ पॉजिटिव है तो यहाँ मुझे क्या लाना है? नेगेटिव लाना है। नेगेटिव लाने के क्या करेंगे? ऑक्सीजन के पास क्या प्रेजेंट है यहाँ पर? लोन पेयर। इस बॉन्ड को इलेक्ट्रॉन आते हैं, या नेगेटिव आएगा, नेगेटिव और पॉजिटिव मिलकर क्या बना लेंगे? बॉन्ड बना लेंगे। क्या बनेगा? R C डबल बॉन्ड O, और ये क्या जुड़ा हुआ है? क्लियर है? यहाँ से क्या बाहर निकला बेटा? H पॉजिटिव को कौन अटैच कर देगा? O नेगेटिव, और क्या बनेगा? प्लस C6H5C डबल बॉन्ड O। समझ में आ गई? इस तरीके से इस रिएक्शन की क्या होती है? मैकेनिज्म होती है। लिखना स्टार्ट करो। कोई स्टेप में प्रॉब्लम हो तो पूछ लेना। अकेले अकेले नहीं हंसना, मुझे बता के हंसना, मैं भी हंसूंगा। यही तो करते आए हम इतने दिनों से। क्यों बेटा? वही है जो है, वही है, कोई चेंज नहीं किया यार कन्हैया। लास्ट में से एक टॉपिक कम कर दिया है, दैट्स इट। नहीं हो रहा कोई कम सिलेबस।
तुम इस चक्कर में मत रहना, कम के चक्कर में ज्यादा भी नहीं पड़ो। देखो इसमें रोटेशन बंद कर रखा है इसका, नहीं नहीं गलत बात है, नहीं बिल्कुल नहीं करूंगा। देखो सुनना बेटा एक बार, देखो यूनिट थर्ड अपन ने स्टार्ट करी थी। इधर देखो अपन ने स्ट्रक्चर ऑफ द कार्बोनाइल ग्रुप पढ़े थे सबसे पहले कि दोनों एटम का हाइब्रिडाइजेशन sp2 होता है, सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन किया था। फिर सिंथेसिस ऑफ एल्डिहाइड फ्रॉम एसिड क्लोराइड करा था अपन ने, सिंथेसिस ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन यूजिंग 1,3-डाइथाइल, जिसमें अम्पुलंग वाला बताया था, रिवर्सिबल ऑफ पोलैरिटी। अम्पुलंग एक जर्मन लैंग्वेज का वर्ड है, बताया था कि नहीं बताया था? कोई बात नहीं, मुझे तो याद मैंने कराया, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद कराया है सिंथेसिस ऑफ कीटोन फ्रॉम नाइट्राइल्स। कौन सी रिएक्शन है? RCN का रिडक्शन करवाया था, स्टीफन रिएक्शन कराई थी नहीं कराई थी? कौन याद करेगा? सेकेंड ईयर के पेपरों से ही रिजल्ट से निर्धारित होगा फर्स्ट ईयर का रिजल्ट। वेरी गुड। एंड फॉर्म कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड से कराया था। मैकेनिज्म ऑफ न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन करा दी है बेटा, विद स्पेसिफिक एम्फेसिस ऑन बेंजोन कंडेंसेशन। कराया नहीं कराया? एल्डोल, पर्किन याद होता था, पार्किंग से याद क्या बनता है? सिनेमिक एसिड। नोवन जेल मेरा है क्या? कंडेंसेशन विद अमोनिया क्या बनता है? जब अमोनिया की रिएक्शन फॉर्मेल्डिहाइड से कराते, कल बताया था। कौन सी मेडिसिन मिलती है? यूरोट्रोपिन, कल ही बताई थी बेटा। स्ट्रक्चर बनाने नहीं सिखा रहा था मैं कल। एंड इट्स डेरिवेटिव्स, अमोनिया के डेरिवेटिव से जेड की जगह OH लगा दिया था, NH2 लगा दिया था, फेनिल हाइड्रोजीन लगा दिया था। अच्छा नेक्स्ट, बिटिंग रिएक्शन करा दी, मैंने रह गई है ऑक्सीडेशन ऑफ एल्डिहाइड वहां पर भी है, वो भी वहीं पे 5th यूनिट में सेम है, सेम वहीं कराऊंगा। अच्छा ऑक्सीडेशन ऑफ एल्डिहाइड अपन चल ही रहे हैं, और मैंने को नहीं लगा अपने में क्या नहीं रहा। देखो बेटा नेक्स्ट हेडिंग, केनी-ज़ारो रिएक्शन। केनी-ज़ारो रिएक्शन केनी-ज़ारो नाम से याद रखना, केनी-ज़ारो को ऐसे याद रखना, कैन नॉट, अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं होना चाहिए। और एक पढ़ी थी अपन ने एल्डोल, एल्डोल में अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए, तो लिख लो कॉपी, याद रहेगी पेपर। एल्डोल अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट, एल्डोल में लिखो अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट, और केनी-ज़ारो में लिखो अल्फा हाइड्रोजन एब्सेंट।
ठीक है, लिखो बेटा, these reactions will be given by those compound. These reaction will be given by those compound which does not have. These reaction will be given by those compound which does not have alpha hydrogen atom. Which does not have alpha hydrogen atom. And in this reaction, one molecule should be show oxidation. One molecule should be show oxidation, while another molecule should be show reduction. देखो बेटा, बोर्ड पे देखना एक बार। दो मॉलिक्यूल है, ये फंक्शनल ग्रुप हो गया। फंक्शनल ग्रुप से अटैच्ड कार्बन कौन सा कहलाता है? अल्फा कार्बन। यहाँ पे अल्फा कार्बन है क्या? नहीं है। मतलब अल्फा कार्बन नहीं है तो अल्फा हाइड्रोजन भी नहीं है। जबकि याद करो अपन ने पढ़ी थी एल्डोन में अपन ने किस में करवाई थी? CH3 C डबल बॉन्ड O। इस तरीके से ये फंक्शनल ग्रुप हो गया। फंक्शनल ग्रुप से अटैच्ड कार्बन अल्फा कार्बन और अल्फा कार्बन से अटैच्ड अल्फा हाइड्रोजन। अब देखो सुनो, दोनों सेम मॉलिक्यूल है, दोनों में अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। एक मॉलिक्यूल तो इसको बना रहा है सपोज दैट, और एक मॉलिक्यूल से ये बन रहा है। ठीक है, अच्छा यहाँ पर CH2 था, लेकिन CH2 इसमें चेंज हो गया CH3 में, और ऑक्सीजन का क्या हो गया OH में। इसका मतलब हाइड्रोजन आता है अटैच हो, और हाइड्रोजन को अटैच होने को ऑक्सीडेशन कहते हैं, रिडक्शन। इसका मतलब क्या हो रहा है? रिडक्शन होती है। कोई भी रिएक्शन ऐसी नहीं है जो रिडॉक्स नहीं हो। एक तरफ ऑक्सीडेशन होगा तो एक तरफ रिडक्शन होगा। अच्छा ये वाले मॉलिक्यूल क्या है? यहाँ कितने हाइड्रोजन है? दो हाइड्रोजन है, जबकि यहाँ पे कितने रह गए? एक रह गए। कितने ऑक्सीजन के एटम है? एक। यहाँ कितने हो गए? दो। और नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम का बढ़ना क्या कहलाता है? ऑक्सीडेशन। सावरा उड़े, तुम ऐसे क्यों बैठी हो 180 डिग्री के एंगल पे? हैं, आप साइड उनके साथ ही बैठ जाओ। ऐसा थोड़ी तुम्हें समाज से बाहर निकाल दिया है। अब रिएक्शन हुई तो रिएक्शन की क्या हुई होगी? मैकेनिज्म हुई होगी। समझा रहा हूं, पेपर में पूरे में रिएक्शन लिखेगी, और हर रिएक्शन क्या लिख के आनी है तुमको? मैकेनिज्म। मैकेनिज्म देखो, तुम्हें एनी कैसे ब्रेक होगा बेटा? एनी पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव के फॉर्म में होगा। दोनों में से कोई सा भी एक मॉलिक्यूल उठा लो, ध्यान से देखना है। HC डबल बॉन्ड O और ये H लिखिए ना, प्लस OH नेगेटिव। हाँ भाई अंकल, कार्बन आइटम बॉन्ड की कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन बन गया मेरा न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल पर नेगेटिव चार्ज, और न्यूक्लियोफाइल से अटैक करेगा। कार्बन और ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, ऑक्सीजन पर नेगेटिव और कार्बन पर जैसी पॉजिटिव आए ये इसको क्या करेगा? अटैक करेगा। क्या कंडीशन है बेटा? HC H ऑक्सीजन पर कैसा चार्ज? नेगेटिव चार्ज, और ये क्या जुड़ गया उससे? O सिंगल बॉन्ड H। क्लियर है? ये नेगेटिव और पॉजिटिव मिलकर बॉन्ड बन गया। अगली कंडीशन में क्या होता है बेटा? देखो, ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज ऊपर की तरफ आता है, और ये ऊपर की तरफ आता है। इसका मतलब यहाँ से -H नेगेटिव हाइड्राइड आयन निकलता है। H पॉजिटिव को तो बोलते हैं प्रोटॉन, और H नेगेटिव को हाइड्राइड आयन। जब यहाँ नेगेटिव आया तो यहाँ पॉजिटिव और नेगेटिव मिलकर क्या बनता है? डबल बॉन्ड। क्या बनता है? HC डबल बॉन्ड OH। क्लियर है यहाँ तक की बात? अच्छा एक मॉलिक्यूल का तो मैंने यहाँ प्रोग्राम कर दिया, दूसरा मॉलिक्यूल उठा के लाता हूँ अभी, देखना। HC डबल बॉन्ड OH प्लस, यहाँ से क्या बॉन्ड किया है अभी? H नेगेटिव। ये रहा ये H नेगेटिव। कार्बन और ऑक्सीजन किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है? ऑक्सीजन की। ऑक्सीजन पर नेगेटिव, कार्बन पर कार्बन को पॉजिटिव, तो इससे कौन छोड़ जाएगा? नेगेटिव। क्या बनेगा बेटा? HC H और O नेगेटिव। फिर देखो
ये बना था अभी अभी, ठीक है, इसको लिखता हूं मैं HC डबल बॉन्ड OH। ऑक्सीजन और हाइड्रोजन में किसके इलेक्ट्रॉन ज्यादा है? ऑक्सीजन की ज्यादा है, बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन पर आएंगे, ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज, यहाँ से क्या बाहर निकलेगा बेटा माइनस HC डबल O नेगेटिव, और यहाँ से जो H पॉजिटिव निकलेगा वो इससे जुड़ जाएगा। तो मैं इसको कैसे लिख दूं? CH3OH बन गया। एक तो मैकेनिज्म में CH3OH प्लस, यहाँ क्या बच गया बेटा HC डबल O नेगेटिव, रिएक्शन में ये पॉजिटिव बच रहा है, क्या क्या मिला HC नेगेटिव यदि पॉजिटिव से मिलके HC डबल O का फॉर्मेशन कर देता है। कौन सी रिएक्शन है? केनी गारो रिएक्शन है, केनी गारो, केन नॉट अल्फा हाइड्रोजन, एल डॉट अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट, याद रखना, लिख लो। ये बेसिक है, ये बेसिक रिएक्शन आपको कुछ नहीं है, अल्कोहल रिडक्शन लगेगा, इसमें आपको 50 मोलेकुलर का फॉर्मूला रिएक्शन कल खत्म है यूनिट, अब रेगुलर आना 4 यूनिट से सब स्ट्रक्चर एंड बॉन्डिंग, कार्बोनाइल कंपाउंड चलेगा कल, और फिर चलेगी अपनी 5th जनवरी में अपना कर देंगे प्रोग्राम, ठीक है बेटा, जनवरी में नया प्रोग्राम चलेगा, मई में चलो देखो नेक्स्ट है देखो रिडक्शन, रिडक्शन नेक्स्ट है देखो रिडक्शन, रिडक्शन रिडक्शन, ठीक है, रिडक्शन में देखो, रिडक्शन का मतलब है हाइड्रोजन का अटैचमेंट, देखो when एल्डिहाइड बनेगा तो इक्वल, लेकिन एल्डिहाइड से बनेगा कौन सा इक्वल? when aldehyde will be reduced, when aldehyde will be reduced, then they will be formed, when aldehyde will be reduced, then they will be formed primary alcohol, then they will be formed primary alcohol, and by the reduction of ketone, and by the reduction of ketone, secondary alcohol will be formed, secondary alcohol will be formed, इसे कहते हैं कॉन्ट्रैक्टर ऑफ अल्कोहल। बस तो फिर हम बार-बार इसको उठा के लेके आएंगे, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड का होगा ठेकेदार बनता है, ठेकेदार बनाता है, कौन बनाता है? ठेकेदार बनाता है, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड क्या है? and continue to end on further reduction, and on further reduction aldehyde and ketone, and on further reduction aldehyde and ketone will be changed into, and on further reduction aldehyde and ketone will be changed into hydrocarbons, will be changed into hydrocarbons। आपके सिलेबस में 5 रिडक्शन है, पांचों के नाम लिखा के जा रहा हूं, कल से स्टार्ट करता हूं। पहला है MPV रिडक्शन, MPV मीरवान पॉन्टर ऑफ बर्लिन, MPV रिडक्शन, देखो हेडिंग नहीं है, पहला है MPV रिडक्शन लिख लो, केवल तो फुल फॉर्म कर लगा दूंगा। दूसरा है क्लीमेंसन रिडक्शन, क्लीमेंसन रिडक्शन, क्लीमेंसन रिडक्शन। तीसरा है वोल्फ-किस्लर, वोल्फ-किस्लर रिडक्शन, वोल्फ-किस्लर रिडक्शन। नेक्स्ट है बेटा रिडक्शन बाय द लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, दारू बनेगी,
लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। सीधे से आइए मेरी लिथियम हाइड्राइड। लास्ट वाला है रिडक्शन मेथड सोडियम बोरोहाइड्राइड। तो कल अपन पांचों पढ़ेंगे सोडियम बोरोहाइड्राइड NaPH बोरो। फिर B1 ड्रॉप हो गई, और बची हुई बोरोसिस्टम हो गई, लिथियम हो गई, सोडियम को रिवर्स करना है, तीन है कल कर सकते हैं बेटा।